समाज में जैसे जैसे अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस महादान का हिस्सा बन रहे हैं। राजपीपला के एक परिवार ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी बेटी वृंदा पटेल को खो दिया, लेकिन फिर भी दिलेरी दिखाते हुए बेटी के अंगों का दान कर 7 लोगों को नया जीवन दिया है। कहते हैं मृत्यु के बाद भी लोग आपको याद करें, उसके लिए हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। ये बरसों से हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में ये सिखाया जाता है। मगर जिन्हें छोटी सी जिंदगी मिली हो, उनको लोग कैसे याद करेंगे? और जब छोटी सी जिंदगी के बाद लोग याद करें, ऐसा कोई काम करें, तो वो होता है ऑर्गन डोनेशन, अंगदान। महज 17 साल की जिंदगी मिली, 7 लोगों को नई जिंदगी देकर इस दुनिया को अलविदा किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजपीपला की वृंदा पटेल की। आकस्मिक मृत्यु और परिवार तैयार हुआ इतनी छोटी सी बेटी को गंवाने के बाद भी कि हमें बेटी के ऑर्गन डोनेट करने हैं और लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत बनानी है और ज़्यादा खुशियाँ देनी है। भले ही हमारी आँखों में आंसू है, मगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। ये सोच राजपीपला की वृंदा पटेल के परिवार ने डॉक्टरों के सामने रखी। उसके सामने बहुत सारे घरों में खुशियाँ लौट आएगी। ऐसे वक्त पर परिवार से बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, और हमारे जैसे पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है कि सवाल नहीं पूछना चाहिए ऐसे वक्त पर। मैं इसीलिए वडोदरा शहर की मांजलपुर स्थित ग्लोबल सनशाइन हॉस्पिटल आई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑर्गन डोनेशन अभियान में जुड़े। और इसीलिए ये परिवार से मैं बात करने वाली हूँ कि अपने आप को उन्होंने कैसे तैयार किया ऐसी कठिन परिस्थिति में। यही जानेंगे, उनके पिताजी हमसे बात करेंगे। वृंदा की आकस्मिक मृत्यु और फिर आपने ये डिसीजन लिया कि उसके ऑर्गन डोनेट करने हैं। डॉक्टर से क्या बात हुई, कैसे अपने आप को आपने तैयार किया? મારી દીકરીને સારવાર અર્થે અહીંયા ગ્લોબલ સનશાઇનમાં અમે લાવ્યા। સારવાર અર્થમાં ડૉક્ટર દ્વારા સારવાર પણ થઈ, પણ એમાં બ્રેન્ડેડ જાહેર થયું છે। એટલે અમને એક એવો પણ વિચાર આવ્યો કે ભલે અમારી દીકરી નથી રહી, પણ જો એને અમારે જીવિત જોવી હશે બીજામાં, તો અમને અંગદાન માટે એક પ્રેરણા મળી। અને ઘણી વખત અમે કથામાં આમ ઘણી બધી એમાં પણ સાંભળીએ છીએ કે જો કોઈકને બીજાને જીવતદાન મળતું હોય તો એનાથી વિશેષ મોટું કોઈ દાન નથી। એટલે અમે અને અમારા પરિવારે બધાએ નક્કી કર્યું કે ભલે દીકરી આપણી પાસે નથી, પણ આપણે જો બીજાને અંગ આપીશું તો એનાથી તો આપણી દીકરી આપણી સાથે રહેશે। અને એ વિચારી અમારા બધા પરિવારે નક્કી કર્યું, હૃદય પર પથ્થર મૂકીને અમે નક્કી કર્યું કે બસ અમારે આ સૌથી મોટું આ દાન છે અને અમારે આ દાન કરવું છે। એ એક પ્રેરણાથી અમે નક્કી કર્યું અને અમે આ વિચાર કર્યો છે। જ્યારે અહીંયા બરોડા તમે આ હોસ્પિટલમાં લાવ્યા, ત્યારે ડૉક્ટર સાથેની જે ચર્ચા થઈ, જ્યારે બ્રેન ડેડ ડિક્લેર થયું,
ડૉક્ટર સાથેની જે ચર્ચા હતી એમાં કેટલો સમય લાગ્યો કે હા અમારે આ કરવું જ છે અંગદાન? એ અમારે શું થયું, બે એક દિવસ થયા, MRI થયો. પછી MRIમાં અમને ડૉક્ટર્સે આવું કહ્યું કે બ્રેન્ડેડ છે. પછી તમારી જો કંઈક ઈચ્છા હોય કે તમારે અંગદાન કરવું હોય તો અમને તો એટલું એ થયું કે એટલે પછી અમને એ વિચાર કરી અને અમે અંગદાન માટે તૈયાર થયા. ડૉક્ટર્સનો કોઈ જ ફોર્સ નથી આમાં. અમે અમારી રીતે આપીએ છીએ. અને બીજું કે અમારી દીકરી બીજાને જો જીવતદાન મળતું હોય તો એનાથી વિશેષ અમને કોઈ જ એ નથી. એટલે અમે એના માટે. તમે કોઈ દિવસ આવા કોઈ ન્યૂઝ વાંચ્યા છે, કોઈ વિડીયોઝ જોયા છે કે જેમાં લોકોએ અંગદાન કર્યું હોય? કર્યું છે. એટલે પ્રેરણા અમને એના પરથી મળી કે અહીંયા જ અમારા જ સમાજના બરોડામાં લગભગ 2-3 મહિના પહેલાં જ એક બહેનને 35 વર્ષના જ બેન હતા અને અમારા જ સમાજના એ બેને એમના પરિવારે અંગદાન કર્યું અને એનાથી અમને પ્રેરણા મળી કે અમારે પણ આવું કંઈક કરવું જોઈએ. એટલા માટે અમે આ અંગદાન માટે તૈયાર થયા છીએ. ખૂબ કઠિન પરિસ્થિતિ છે તમારા માટે, પણ તે છતાં હું કહીશ કે તમે આમ લોકોને શું મેસેજ આપશો જે આજે તમે આટલું મોટું ડિસિઝન લીધું છે? હું આમ લોકોને એક જ કહેવા માગું છું કે આ જો આપણે કરીએ તો સમાજને એક ઉમદા ઉદાહરણ મળશે. સાથે સાથે સમાજના લોકોને જે કોઈકને જરૂરિયાત છે, માનો કે આજે કોઈક પાસે આ વસ્તુ નથી તો એ વસ્તુ એને મળશે અને એનાથી જો એનું જીવન ઉજ્જવળ થશે એ બહુ મોટું વિશેષ છે. એટલે સમાજના લોકોને એ જ કહેવા માગું છું, બધા જ લોકોને કહેવા માગું છું કે સૌથી મોટું આ દાન છે અને બધાએ કરવું જ જોઈએ. डॉक्टर से बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन डोनेट हो रहे हैं और कौन कौन सी सिटी में ये ऑर्गन इम्प्लांट होने वाले हैं. डॉक्टर अंजलि हमारे साथ हैं. मैम बताइए कि कौन कौन से ऑर्गन वृंदा के डोनेट हुए हैं? हाँ, वृंदा के अभी जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स में लंग्स है, हार्ट है, देन लीवर, इवन पैनक्रियास एंड किडनी, बोथ किडनीज, और उसके कॉर्निया, आइज़ का भी हो जाएगा. तो ऐसा करके लाइक द मैक्सिमम वी कैन डोनेट, वैसा हमारा ट्राई है कि ये सब ऑर्गन्स डोनेट होंगे उसके. क्योंकि पेशेंट यंग है, सो चांसेस ऑफ रिसिपिएंट द वन हु विल रिसीव, तो उनके चांसेस अच्छे हो जाएंगे. तो जो अभी जो अपने टीम्स आए हैं, लंग्स जाएगा चेन्नई, हार्ट इज़ गोइंग मुंबई, एंड बाकी पैनक्रियाज, लीवर एंड किडनी मोस्टली अहमदाबाद. रिट्राइव करके अहमदाबाद लेकर जाएंगे, देन दे विल डिसाइड फ्रॉम देयर. अक्सर ऐसे ऑर्गन डोनेशन के लिए जो प्रोसीजर होता है वो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है. उसमें बहुत सारी टीम जुड़ती है, ट्रैफिक की टीम जुड़ती है, पुलिस डिपार्टमेंट जुड़ता है. उसके बारे में कुछ बताइए मैम. यस, ट्रैफिक के लिए एंड पुलिस के लिए, पुलिस से हमको काफ़ी सारा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन चाहिए होता है. तो हमारे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर दीपाली, शी इज़ कोऑर्डिनेटिंग विद देम एंड एवरीवन इज़ लाइक हेल्पिंग कि जो हम ऑर्गन रिट्राइव करेंगे वो ग्रीन कॉरिडोर से कम टाइम में जहाँ पर रिसिपिएंट है वहाँ पर पहुँचने चाहिए. इसमें ट्रैफिक कंट्रोल एंड पुलिस डिपार्टमेंट का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है. जी, आम लोगों को क्या कहेंगे? वैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मगर अभी भी जो अंधविश्वास की बातें हैं, जो लोगों में एक मिथ्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग से वो सोच नहीं निकल रही हैं. तो आम लोगों को अगर संदेश देना है बीइंग ए डॉक्टर तो आप क्या कहेंगे मैम? मतलब सब लोगों का ऐसे रहता है कि अगर लोगों के लिए वो ट्रॉमा होता ही है ऑर्गन डोनेशन के लिए, पहले तो वो पेशेंट का डेथ होता है, वो एक मेजर ट्रॉमा होता है. बट अभी ऑर्गन डोनर अवेयरनेस बढ़ ही रहा है, सोशल मीडिया से बोलिए या फिर ये न्यूज़ चैनल से है. ऑर्गन डोनेशन का जो अवेयरनेस है वो बढ़ रहा है. तो लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका पेशेंट आपके पास नहीं है, बट यू जस्ट थिंक इन अ वे कि उसके ऑर्गन्स अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो पेशेंट हमारा लिविंग कंडीशन में है, दैट वी कैन थिंक ऑफ. किसी दूसरे को उसका फ़ायदा हो रहा है.
आप अपना पेशेंट हमारे पास नहीं है, बट उसकी वजह से दूसरों को ज़िंदगी मिल रही है। सो अगर पॉसिबल है, जो भी कंडीशंस में अगर ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल है, तो मैक्सिमम हमको ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए। जब एक जवान की मृत्यु हो जाती है सरहद पर लड़ते लड़ते, तो हम उसे कहते हैं कि जवान अमर हो गया है। ऐसे लोग जो नई ज़िंदगी देकर जाते हैं लोगों को अपने ऑर्गन से, परिवार वाले जो सोच रखते हैं, उनको भी हमें अमर हो गए हैं ये कहना चाहिए। और साथ साथ में एक ख़ास बात आखिर में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। वृंदा के पापा ने जो जिक्र किया कि हमने कथा में सुना, हमारे जो धर्मगुरु कहते हैं वो सुना था, और हमने फ़ौरन ये डिसीजन लिया जब हमसे डॉक्टर ने बात की। बहुत बड़ी बात कही है वृंदा के पापा ने। हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो अक्सर मज़हब के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, मज़हब के नाम पर पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। समाज में खुशियाँ फैलाने के बजाय वो बहुत ज़्यादा लोगों को भड़काने वाली बातें करते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी, सभी धर्मगुरुओं से यही गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी जो है उसे बखूबी निभाएं, लोगों को समाज में अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें, ना ही कि समाज में बंटवारा करने के लिए। ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है जिन भी धर्मगुरु ने कहा होगा, जिन कथा में उन्होंने सुना होगा। ये बहुत बड़ा संदेश दिया है आज के धर्म के जो ठेकेदार हैं, धर्म के जो गुरु हैं, अपने आप को गुरु मानते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है और किस तरह उन्हें समाज में लोगों को जोड़ने के लिए और सिर्फ पैसे दान करने की जो बातें सिखाई जाती हैं कि आप दान कीजिए, लोगों को ये दीजिए, ठीक है, वो भी मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मगर सबसे बड़ा जो दान है वो महादान जिसे हम कहते हैं, वो अंगदान है, ब्लड डोनेशन है। उसके प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। आप भी सोचिएगा, ऐसे धर्म की बातों में मत आइए, ऐसी बातों को तवज्जो देने की कोशिश करें।